Hello and welcome to Source Astrology video number 105. Now what were we doing? हम क्या कर रहे थे? हम जनरेशन प्लैनेट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे. जनरेशन प्लैनेट्स आपके आउटर आउटर लिमिट्स में है. वो आपके जीवन के अंदर बहुत सारी न्यू चैप्टर, न्यू न्यू टाइप ऑफ डायमेंशंस ओपन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. वो पूरी जनरेशन को गाइड करते हैं, वो पूरी जनरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ट्रेंड सेट करती है, वो न्यू वैल्यूज डेवलप करती है सोसाइटी के लिए, वो लाइफ के अंदर जितने भी ट्रांजिशंस हैं हो रहे हैं उसको गाइड करती है. सो व्हाट वी डिड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. So in my last video, what we did, we studied Uranus. We studied Uranus. We studied Arun. So in this video, we're going to take up another planet and we're going to understand how much time it takes to revolve around the sun. So why we are trying to understand his revolution around the sun. एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वो कब डिस्कवर हुआ था, क्यों समझना चाहते हैं हम कब डिस्कवर हुआ था, क्यों समझना चाहते हो कितना रिवोल्यूशन लाता है. सो दैट वो जिस टाइम डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर किया गया था, उस टाइम में सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा था. बिकॉज अगर वो डिस्कवरी हो रही है दैट मीन्स कुछ ना कुछ को रिलेशन नेपच्यून का है. वो सारी चीजें के लेके जो चीज वो रिप्रेजेंट कर रहा था जब सोसाइटी के अंदर नेपच्यून को डिस्कवर किया गया. एंड वी नीड टू नो दैट कितना टाइम लगाते हैं सूर्य के रिवॉल्व करने के लिए, बिकॉज शायद वहां पे पूरी अर्थ की एक पैटर्न बदलने की क्षमता है नेपच्यून के अंदर, और कितना टाइम वो एक साइन के अंदर गुजारते हैं. बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई नेपच्यून्स, लाइक यूरेनस पोजिशन. यू ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई नेपच्यून्स पोजिशन. यू कैन यूज एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर आपको बता देंगे कि कहाँ से नेपच्यून की पोजिशन. मैंने इन माई लास्ट टू लास्ट वीडियो आई हैव शोन यू how to find using Jagannath Hora, how to find using Rig Panchang, कि कैसे आप पता लगा सकते हो. So even for any other native or any other mundane astrology, you can predict that. So that is very very important. So today let me just share you my file for Neptune. We're going to understand Neptune and we're going to try see what all area it represents, and वो एरिया आपके चार्ट के अंदर कहाँ पे है, आप कौन से भाव के अंदर नेपच्यून बैठे थे जिस वक्त आपका जन्म हुआ था, और वो कितने टाइम बाद अभी कहाँ से प्रोग्रेस कर रहे हैं. So this is very interesting fact, and that's I always tell, again I'm telling you, you learn you learn astrology, you implement astrology, study astrology, then try to experience astrology. And these generational planets are generally not taken in Vedic astrology because they are far, but they have their domain, they have their dimensions. And this is the time we need to open ourselves up. We should actually correlate. We should co-learn from other things which is available over here. Because why these videos are coming? Because I saw some charts and I was very surprised to see certain kind of things which is actually which gave me a reflections of all the qualities of these planets. So that is why मैं ये videos बना रहा हूँ आपके सामने, so that you can learn from them. So today we are going to learn Neptune. So let me just quickly share you my file. So last time we did what, we understood Uranus. So we understood Uranus. So now let us understand Neptune. So Neptune को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? We call it Varuna. So I had shown you in Drik Panchang that Arun, Varun and Yam के लिए Pluto. So नेपच्यून को डिस्कवर किया गया था 1846 में बाय जोहान गॉटफ्रिड गैले. सो जब डिस्कवर किया गया तो उस वक्त समाज में क्या हो रहा था, उस वक्त क्या हो रहा था. So at the time of photography was beginning. So photography क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इस काइंड ऑफ इल्यूजन. जब आप कोई चीज फोटोग्राफ करते हो चीज को, वो एक्चुअली रियलिटी में नहीं होती, वो उसका एक इमेज है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. So that's the thing that was happening. So things seems real, but it is actually a photo or a film. So that kind of thing, that thing was happening on the thing. So this was the onset of screen movies that would connect the world with collective trends and messages. जब नेपच्यून को डिस्कवर किया जाता था उस वक्त मूवीज एकदम स्टार्टिंग फेज ऑफ मूवीज थी, ऑनसेट ऑफ द स्क्रीन मूवीज. एंड वो अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए एक बेस्ट मीडियम था मूवीज, एंड ट्रेंड सेट करने के लिए लाइफ की, सोसाइटी की जो जितने भी ट्रेंड्स है, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग योर लुक्स, योर फील, योर सराउंडिंग, योर लग्जरीज, योर ड्रेसेस, योर सेंस ऑफ स्पीच, everything was being set at that moment. So that was the time when things were happening like that, when Neptune was discovered. Neptune is about ecstasy, either high received through spiritual revolution. So Neptune क्या करते हैं? Neptune आपको एक ecstasy दे सकते हैं through a spiritual connection,
or through drugs and alcohol. So that is also possible. It is connected with intoxication. ये नशे से connected है. Art, music, and a kind of fun and dancing. So that is what the thing. So, but its main purpose is to give you an internal ecstasy. उसमें लेके जाते हैं आइदर थ्रू इंटॉक्सिकेशन और थ्रू स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन. तो हम जिंदगी में हमें क्या होता है, आपने देखा होगा जो द पीपल हु ड्रिंक, सो वो एक नशे के उसमें चले जाते हैं, वो एक मग्न हो जाते हैं एक तरह से, उन्माद हो जाते हैं हम बोलते हैं. तो उन्माद और एक भी होते हैं जो अंदर एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, एक स्पिरिचुअल गस्ट को फील करते हैं. देयर समथिंग इज राइजिंग इन सडन, उनको भी सेम तरह का एक उन्माद होता है. तो दोनों ही एक तरह का उन्माद है. सो नेपच्यून इज द प्लैनेट जिसको जानना बहुत जरूरी है. ये उस तरह की एक एक्सटेसी दे सकता है. सो नेपच्यून बहुत हद तक केतु की तरह है. इट रूल्स द इल्यूशनरी वर्ल्ड एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी एंड साइकिक पावर. सो ये इल्यूशन की दुनिया, स्पिरिचुअलिटी एंड जितनी हमारे अंदर साइकिक पावर्स है उसको दर्शाता है. सो अब नेपच्यून का हम थोड़ा देखा, हमने लास्ट टाइम यूरेनस का देखा था. 84 वर्ष लगते हैं उसको सन के चारों ओर जाने के लिए. नेपच्यून टेक्स 164.79 years ऑन एन एवरेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. एक ह्यूमन बीइंग का विंशोत्तरी दशा में मैक्सिमम 120 years दिया हुआ है. तो शायद ही होता है कि एक कोई ह्यूमन बीइंग इसकी पूरी रिवोल्यूशन देख पाए. But still, there is another thing which you can see is that it stays in a sign for around 14 years. तो एक साइन के अंदर एक 14 years रहते हैं. That means it is impacting, though it is far away. It is your outer limit. बट उसके अंदर भी आप एटलीस्ट 14 साल ये एक जगह से गुजरते हैं. सो अगर आप ये 14 साल का पीरियड आप अपनी जिंदगी के अंदर देखें तो आप कुछ इंफॉर्मेशन शायद अपने बारे में पता लगा सकते हैं. सो अब देखते हैं हम नेपच्यून कहाँ का रूल करते हैं. जैसे हमने यूरेनस के बारे में समझा था, तो नेपच्यून कहाँ का कौन से एरिया को रूल करते हैं. मैं चाहूंगा कि आप फिर से नोट डाउन कर ले. अगर आप नोट डाउन नहीं किए, इस वीडियो को पॉज करके गेट अ डायरी एंड पेन एंड प्लीज राइट इट डाउन, और इसको एक बार और देख के राइट इट डाउन. यू कैन बी वट एवर यू डिसाइड. सो नेपच्यून रूल करते हैं इल्यूशन, द वर्ल्ड ऑफ इल्यूशन, जहां पे भ्रम है. सो बी वेरी केयरफुल फ्रॉम वेयर यूरेनस इज पासिंग इन योर चार्ट. Even if you happen to see some of the magicians chart, जिनके जो magician and illusionist है उनके चार्ट में देखिए, and it may give you a kind of a database कि actually उनके चार्ट में नेपच्यून कहाँ पे प्रेजेंट है. बट इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ भ्रम जाल. ये डिसेप्शन को रूल करते हैं, जहां पे धोखा हो सकता है. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जिस स्थान से, स्पेशली फॉर मुंडेन ज्योतिष, जियोपॉलिटिकल. मैं हमेशा बोलता हूँ क्यों ये आउटर प्लैनेट जानना, आउटर प्लैनेट जानना जरूरी, क्यों जनरेशन प्लैनेट, बिकॉज सोसाइटी के अंदर जो ये डिसेप्शंस एंड इल्यूशंस बन रहा है इसको बहुत हद तक दर्शाता है. कौन सी इंडस्ट्री, जब हम मुंडन करेंगे वो हम शायद पता लगे जाएगा नेपच्यून की पोजीशन देखने के बाद कि नेपच्यून इस जगह से गुजर रहा है, सेकेंड हाउस से गुजर रहा है, शायद बैंकिंग में. अब बैंकिंग में, शायद फूड इंडस्ट्री के अंदर कुछ डिसेप्शंस हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती है. दीज आर द एरियाज विच कैन बी देयर. मे बी वी कैन वॉच इंडिविजुअल कंट्री टू कंट्री, किस कंट्री के अंदर क्या हो सकता है. तो दिस कैन ओपन अप अ होल न्यू पैंडोरास बॉक्स फॉर यू. कंफ्यूजन दर्शाता है कि उस एरिया में, बिकॉज नेपच्यून इज अ वेरी फार अवे प्लैनेट, ये बहुत दूर का प्लैनेट है. वहां से कोई इंफॉर्मेशन जब आपके अंदर आता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट मास टू अंडरस्टैंड दैट. तो ये जिस जगह को दर्शाता है, जिस डायरेक्शन को, आई होप बाय नाउ यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस, कौन से चीज कहां से, उस डायरेक्शन में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. जहां की डायरेक्शन में ये बैठे हुए हैं. डिनायल. Denial. This is one of the greatest planet of denial is, of course, you have Saturn, you have Ketu. Then the another planet which we are talking about at the moment, deny. ये deny कर सकता है, denial दे सकता है, रोक सकता है आपको कोई काम में, या सोसाइटी को, ईरा को, on certain things, certain solutions. Neptune can give you that. Drugs. So this is another field which you can, the people who are interested, ये कैसे एक you can study that जब समाज के अंदर drugs ने अपना रोल प्ले किया. Now there are two kinds of drug. One drug जिसको लेके आप intoxicate करते हो, but these drugs are also represented by जो जिस drug से intoxication होता है, that drugs को rule करता है Neptune. And alcohols, fantasies. Okay, human being की imagination इस level में चली गई which is not very practical, not very realistic. That is fogginess of the brain generally. The fogginess when there is no any clarity. जब जिंदगी के अंदर clarity नहीं है, जब एक भाव के अंदर clarity नहीं है, जब एक relationship में clarity नहीं है, शायद you can look into that Neptune rules that area. So dreams, your dreams are ruled by Neptune. Romances are ruled by Neptune.
ग्लैमर की दुनिया, ग्लैमर इज इल्यूशनरी दुनिया ना। आप देखते हो एक फिल्म स्टार, ही इज फाइटिंग विद सो मेनी पीपल, बट इन रियलिटी इज इट सो? There's a very beautiful woman on screen, but when you see him or her, or her on front, or even as no, she doesn't look exactly like that. So ये जो ग्लैमर की दुनिया है, जो आर्टिफिशियल एक दुनिया है, उस दुनिया को ये रिप्रेजेंट करता है नेपच्यून. And spirituality, yeah, that's one of the thing, because spiritual upliftment, because it is coming from something outside, very outside. So there is a kind of a consciousness sending. So अगर soul के साथ इसके communicate हो, it has an ability to uplift your soul. So spirituality is one of the area which it will higher consciousness, because it is a beyond dimension consciousness. Devotion, आपकी भक्ति, जैसे केतु भक्ति रूल करता है आपको, सिमिलरली नेपच्यून ऑल्सो रूल्स भक्ति, द डिवोशनल पाथ. कल्ट्स, जैसे हमने हमें हमें दिखता है कि बहुत सारे कल्ट्स फॉर्म करते हैं. कल्ट्स आर व्हाट? कल्ट्स आर आउट ऑफ द सोसाइटीज. So those cults are actually, there is a kind of a consciousness of Neptune which is running over there. Ocean is represented by, because whole ocean is very deep. So if, when Neptune shows very deep, because there are huge depth, there's huge fathom inside. There is so many mysteries over there, so many unknown consciousnesses over there. So ocean is ruled by Neptune, and liquids are ruled by Neptune. Oil and gas are also ruled by Neptune. तो जब there is a stock market की jump होगी, तो just have a look at this. क्या Neptune ऐसे जगह से गुजर रहा है जहां पे आप यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, अच्छी जगह पर 11th हाउस से अगर नेपच्यून गुजर रहा है आपके चार्ट के अंदर, सो कैन यू पुट और दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट पर्टिकुलर थिंग, so maybe there is going to be shift in that thing. So this is an area which you need to, ये generation planets जो है ना, इसकी आपको database study करनी है, because it is showing a kind of a cycle. ये 14 साल एक इसके अंदर रहते हैं. So you need to understand कि उसका क्या shift हो. If you have a database, then you can do a lot of things based on that. Lot of predictions, lot of understanding, sensitivity in human being, because जहां पे भी spirituality आ रही है, वहां पे the soul is uplifted, the soul becomes a little sensitive. The sensitivity is also ruled by Neptune. And psychic ability, so psychic ability, developing the psychic power, आपके अंदर की जो psychic ability है, opening up all the channels, opening up the message center, आपकी third eye को open करने की ability is there inside Neptune. So this is all about it. I hope you have written it down. Like Uranus, we have done for Neptune. It's very important for you to know कि आप जब पैदा हुए थे तब Neptune आपके चार्ट में कहाँ पे था. What was the trend? What was समाज के? So you can write it down. आप अपना ना डायरी बना सकते हो इन planets के लिए. Maybe you can go into further research into these planets and understanding them. 14 साल ये एक इसके अंदर रहते हैं. What happens? What is happening during that 14 years? What change has happened inside you? क्या change हुआ है आपके अंदर? क्या change हुआ है society के अंदर? क्या change हुआ है एक particular group के अंदर, एक आपके country के अंदर? These are all the point of things which is requires attention, and Neptune can give you that. So I hope you have understood today's video. May Neptune bless many aspects. May bless your spiritual journey, your psychic powers beyond comprehension. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.